نیشنل کانفرنس تو کانگریس پارٹی بنائی جموں کشیر من سرکار اتحادس مز پی ڈی پی شمولیت خوش آئند 8 اکتوبر پتین اصلی نتائج لوکن برہ کن ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن بیان کانگریس پارٹی جمس مز اہم اجلاس حکومت بننے برہی 5 ایم ایل این ہز نامزدگی غیر قانونی تو غیر جمہوری امیدوارن ہز نامزدگی گھس حکومت بننے پت کرنے ین طارق حمید قرہ سن بیان بی جے پی ورائے حکومت بنن ناممکن 8 اکتوبر آسن اصلی نتائج ایگزٹ پولو نش واریاہ مختلف بی جے پی آس حکومت بنانے خاطر مضبوط دعوے دار کویندر گپتا جموں کشیر ہندس موسمس مز تبدیلی گلمرگ افروٹ پہاڑی تو سنتھن ٹاپس پہ تاز برف باری جنوبی کشیر مز جل باری ست میو باغن نقصان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل جموں کشیر ہند سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند طرف ون آمت زِ تمن بروس ز نیشنل کانفرنس تو کانگریس پارٹی بنائی آرام سان جموں کشیر من سرکار تمو ون زِ ہرکا پی ڈی پی تہ تمن حمایت کرن یژھان سہ پی ڈی پی یس مبارکباد کران فاروق عبداللہ سند طرف ون آمت زِ پی ڈی پی این سی تو کانگریس اکسی وتہ پہ اس نفرت ختم کرت جموں کشیر متحد کریں تمو ون زِ 8 اکتوبر پتین اصلی نتائج لوکن برہ کن آپ کے سامنے آ جائے گا بکسے کھلیں گے پتہ لگے گا کون کہاں کھڑا ہے اگر میرے پاس جادوئی چراغ ہوتا تو میں اس جن کو لاتا کہتا جن بتا کتنے ہم جیتیں گے کتنے وہ جیتیں گے مگر اتنا جانتا ضرور ہوں کہ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس بہت اچھے آ جائے گی بہمت سے آ جائے گی مبارک ہو ان کو اللہ کرے ہم لوگ سب ایک ہی راہ پہ چل رہے ہیں کہ نفرت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جموں اور کشمیر کو اکٹھے رکھنا ہے ہر حالت میں اکٹھے رکھنا ہے دیکھیے وہ کیوں ملے کائے کو ملے فاروق عبداللہ کو تو پتہ نہیں ہے ان کے دوست ہو سکتے میں نہیں جانتا پردیش کانگریس پارٹی طرف آز جمس مز اہم اجلاس سانز کرنا آمت یمچ صدارت پارٹی ہند پردیش صدر طارق حمید قرہ سند طرف کرنا آئی اجلاس مز کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر تارا چند رمن بلا تو دویم ذمہ دار تہ موجود ات موقع پہ پردیش صدر طارق حمید قرہ سند طرف ون آمت زِ میٹنگ دوران آئی امیدوارن ہز رائے تو تہذ شکایت بوزنہ تمو ون زِ انتظامیہ طرف چھن الیکشنس دوران امیدوارن تعاون فراہم کرنا آمت تمو جموں کشیر مز 5 ایم ایل اے نامزد کرنس حوالہ وونمت زِ یہ غیر جمہوری تو غیر قانونی تمو ون زِ امیدوار گژھن حکومت بننے پتہ نامزد کرنے ین دیکھیے یہ آج کی میٹنگ ہمارا جو جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جموں میں اور جموں کے اراؤنڈ تو ان کو ہم نے ایک فیڈ بیک لینے کے واسطے کہ ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں کیسا ان کے ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا کیا ان کے ساتھ میں کوآپریشن رہا یا باقی جو معاملات ہیں جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز اینڈ مے بی گریونسز آلسو تو وہ سب لے کے آج ہم نے ان کو بلایا تھا اور ایلابریٹ میٹنگ ہوئی ہر ایک نے اپنی بات رکھی تو جو ایک کامن بات سب سے نکل کے باہر آئی دیٹ واز نان کوآپریشن آف دا ایڈمنسٹریشن ان کے کہنے کے مطابق ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز میں ایک ہی قسم کا ماڈل جو آپریٹ ہوا وہ یہ تھا کہ رات کے ٹائم پہ جو پولیس کے ناکے ہونے چاہیے وہ ناکے غائب تھے جہاں یہ کمپلینٹ کرتے تھے کہیں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لیکر سے بھری ہوئی گاڑیاں بھی ٹریول کر رہی تھیں پیسے سے بھری ہوئی گاڑیاں بھی ٹریول کر رہی تھیں اور کمپلینٹ کرنے کے باوجود بھی اس کی کاگنیزنس نہیں لی گئی تو اٹس اے ویری سیریس کنسرن اور ڈیموکریٹک سسٹم میں اگر ایسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا الاؤ کیا جائے تو یہ ڈیموکریسی کے واسطے ایک خطرہ بن سکتے ہیں لارجر پرسپیکٹیو میں دوسری بات جو اس وقت ہم لوگوں نے ڈسکس کی اور اٹس اے میٹر آف کنسرن فار ایوری ون
ये पूरी बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के वास्ते ये कंसर्न, ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक कंसर्न है कि जो 5 MLAs का ये जो एक सामने बन के आ रहा है, जिसको हम तो कहते हैं कि इट वाज ए प्री पोल रिगिंग। विदाउट इलेक्शन आप किसी को नॉमिनेट करते हो एट योर ओन विम एंड विश, ऐसा डेमोक्रेसी के वास्ते इट्स नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसी की कंसल्टेशन से, किसी की एडवाइस से, और वो है सरकार। और सरकार जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। आप यहाँ पे किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, कहीं पे आपको कोई फीडबैक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, और आर्बिट्रेरली आप 5 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कल को माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज टोटली अनडेमोक्रेटिक, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम सोच रहे हैं कि इस बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता सिंह तरफ से एग्जिट पोलन हवाला रद्दमल ज़ाहिर करान वन आमुत 8 अक्टूबर आसन असली नतज एग्जिट पोलो निश वारिया मुख्तलिफ। तमो वोन बीजेपी आस हुकूमत बनाने खतर मजबूत दावेदार, तो बीजेपी वरय जम्मू कश्मीर मज हुकूमत बनन नामुमकिन। भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जो एग्जिट पोल सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीटें लेते हुए नजर आई और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई। किस तरीके से 8 तारीख को ये सीटें 35 से 40 होंगी। आप ही फिर उस वक्त देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बना है और वही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहा है। तो हमने अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर जो लोगों से किया है, तो उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो कोई भी सरकार हमारे बिना संभव नहीं हो पाएगी। ये 8 अक्टूबर का समय बताएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस बहुमत लेते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, बड़े दल क्या होता है, अलायंस में क्या कौन है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ जम्मू में हो गया, कश्मीर में 1-2 सीटें जो सभी लोग बता रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमने सपना लिया था वो जम्मू कश्मीर में भी सच होने जा रहा है। तो बाकी कश्मीर में जिस प्रकार की इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बहुत से दल अलग अलग वहाँ पर जीत करके आने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो लोकसभा में हमने देखा ही है कि दोनों मुख्यमंत्री जो थे उनको लोगों ने किस प्रकार से हराया था। उसी प्रकार के रिजल्ट सिमिलर सामने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वो 50 पार जो है वो सीटें लेते हुए नजर आएगी और 50 पार वो सीटें लेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो 28 से 30 जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि 40 से 50 के बीच में ये होगा और 40 से ऊपर हम जाएंगे, ऐसा 8 अक्टूबर की जो इस वक्त का समय है वो बता देगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अलायंस को किस तरीके से देख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अलायंस करेगी किसी पार्टी के साथ, या 2014 में पीडीपी के साथ अलायंस किया था और इस बार फिर से पीडीपी के साथ अलायंस करने की कोई संभावना? देखिए, 2014 का समय मैंडेट पीडीपी को कश्मीर में मिला, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस वक्त सरकार बनाना जरूरी था मुद्दों के आधार पर, ना कि विचारधारा को बदल करके। लेकिन अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उसके बाद ही कुछ सब चीज़
में शामिल हो सकें। कैंपेनिंग चल रही है, हर स्कूल की तरफ से चल रही है ड्रग्स के अवेयरनेस के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इनसे दूर रहे बच्चे हमेशा, ताकि अच्छे अच्छे कामों में अपना टाइम स्पेयर करें, इन गलत कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि इनसे परेशानियां होती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हमारे इस मोहल्ले के भी हमने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के बारे में कैंप लगाने शुरू किए हैं। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव वाइब मिलता है कि हमारी बच्चियाँ आगे आगे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप बना था कि दैट मेल कैन डू बेटर देन फीमेल्स, बट व्हेंस यू आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ इवेंट्स फॉर गर्ल्स, दैट्स रियली एनलाइटनिंग एंड दैट्स जस्ट ब्रेकिंग द आइज ऑफ इग्नोरेंस। एंड ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक एनकरेजिंग स्टेप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन जनरल ऑल द स्कूल्स को इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब मॉर्निंग असेंबलीज में या क्लासेस में बच्चियों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ की इम्पोर्टेंस या उनके एम्पावरमेंट के बारे में अगर आप अवेयर करेंगे तो बच्चा आगे सामने आ जाए। उनका वो जो एक शाइनेस है वो ब्रेकअप हो जाएगा एंड दे विल जस्ट कम ऑन द फोर फ्रंट एंड दे शुड जस्ट गेट सम एनकरेजिंग स्टेप्स आर रियली एनकरेजिंग फॉर दैट। सरहदी जिले पूंछ मंडी मज आवाज जामिया फैजुल कुरान तरफ सालाना प्रोग्राम सज कर यथ मौलाना सैयद हैदर तो मौलाना सैयद अहमद हबीब सद तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे तलब इल्मों तरफ ते रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई। तक कहिया तलब इल्म इनामों से नवाजना आमद। वालदेनों तरफ ईद प्रोग्राम मुनक़द करने पे इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमद। के साथ साथ मुश्ताक के दीनिया के तहत दर्जा दीनियात नाजरा के हार को जीत की अजीम उलमाए अहले बच्चों को जान सितारे ये जो जामा फैजुल कुरान मंडी का एक मशहूर इदारा है जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का बेहतरीन बंदोबस्त है। इसी इदारा के शोबा अलूम असरिया जिसे स्कूल एजुकेशन कहते हैं, उसके तहत आज एक एनुअल डे प्रोग्राम मनाया गया जिसमें बच्चों को ये दिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि किस तरह स्टेज पर आकर जो है वो अपनी बात को रखा जाए। ये ट्रेनिंग देने के लिए होता है और इस सिलसिले में आज यहाँ बच्चों ने 46 आइटम्स पेश की जिनमें हमद, नात, मनकबत, एक्शन प्रोग्राम, सीरत पर तकरीरें पेश की गई जो वाकई दिल को लुभाने वाली थी और आवाम ने इसको बहुत सराहा। इस मौका पर हमारे यहाँ मंडी के इमाम हज़रत मौलाना सैयद हैदरी साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद अहले तशरीफ मंडी और पुंछ जामा ज़ियाउल उलूम के नायब मोहतमीम हज़रत मौलाना सईद अहमद हबीब साहब बतौर ख़ास शरीक हुए। इसके अलावा भी बहुत से हमारे अकाबरीन यहाँ मौजूद रहे, ख़ास तौर पर मौलवी मोहम्मद फरीद मलिक साहब और अब्दुल अहाद भट्ट साहब और हमारे अली मोहम्मद मीर चेयरमैन रोहित मेमोरियल सोसाइटी, अकबर अली बांडे और इसके साथ साथ इलाका के मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई और अपने तासुरात का भी इजहार किया और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। जी, इस प्रोग्राम को 2 नशिस्तों में रखा गया था, नशिस्त अव्वल और नशिस्त दोम। दोनों नशिस्तों में अव्वल, दोम और 100 आने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया, कैश प्राइज से नवाजा गया। इसका मकसद ये होता है ताकि बच्चों के अंदर हौसला आए, जुर्रत पैदा हो, शौक पैदा हो और बच्चे किसी भी फील्ड में, चाहे वो तकरीरी फील्ड हो, तहरीरी फील्ड हो, उसमें पीछे ना रहें। शुमाल कशीर कपवार युद्वाई डून पैदावारस मज मान ताहम छन इंतजामिया अत सनतस पोचर दिन हवाले कह कदम तुलान यमकिन डून कारोबार करन वालन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। हंदवरिस से ताल्लुक थावन वालों बापारियों अमवाल मुतालबा कोर्मुत हंदवरिस मज गस मंडी हुन कयाम अमल मज आन युन युत अत सनतस मजीद पोचर दिन यी। तमो वोन जे गैर मुल्की डून गोजन पे गस पाबंदी लागन इन युत कशीर हंदन बापारन मजीद फायदे मिल। गिरी का माहौल बहुत बढ़िया है, सही रेट है। पिछले साल से अच्छे रेट आ रहे हैं। सफ़ेद माल के बहुत अच्छे रेट है। माल पीला हो तो वो तो कम रेट में है, तो जैसे सफ़ेद है वो 700, 750, 800 रुपये तक चलती है हमारे यहाँ। तो हमें मंडी में कोई जगह मिलनी चाहिए,
कुछ नहीं कहना, गिरी वालों के लिए कोई जगह अलाट करवा दीजिए, वो सही रहेगा। गवर्नमेंट से आप कहिए। अब मंडी और क्या, यह बड़ी दिक्कत होती है सबको, पटरी वालों को भी दिक्कत होती है, दुकानदारों को भी दिक्कत होती है। अगर जगह एक अलाट करा दें ना पक्का फ्रूट मंडी के साथ, वो सबसे अच्छा रहेगा उनको। तो पड़ता ही है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना, सब एक ही जगह पर होंगे वो सब सही हो जाएगा। मरकज से क्या हमें जगह दे, अलाट करें, और क्या है। और फॉरेन का जो माल आता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाए, ठीक है, इससे कुपवाड़ा से ज़्यादा, और बारामूला साइड से आता है, उड़ी साइड से आ जाता है कभी कभी। यहाँ बारिश टाइम से नहीं ना पड़ी है, बारिश अगर टाइम से हो रही है और सफ़ेद कलर आ जाता है, ठीक है। इस साल से माल ज़्यादा है, इस साल अच्छा माल है। हाँ ठीक है। खानपोरा से मतलब ये गोज किलो मतलब ये डून वाला मतलब कुल पे अत मतलब मोहन चाना यह 2500 रुपये तकरीबन मतलब रेट खुदा न खास अगर मतलब ये मोहन मतलब कुल पे मतलब वसित पे मतलब पे मतलब सोरी कह मतलब तमिस पे कर डिमांड कर जलाश कर तलाश यह दिन वन मतलब यह अमुक रेट गो रोजान 7 हथ 6 हथ 5 हथ 4 हथ पे मतलब मिल 10-15 दह ग क्रास 15 दिन बाद मतलब यह गोज ये गोज किलो चलान मतलब यह 7 हथ वोल यह वातान 5 हथन पे, यह 4 हथ वोल यह वातान 2 हथन पे। वो कर मतलब गुजारिश मतलब मर्क सेंट्रल गवर्नमेंटस सेंट्रल गवर्नमेंट कर ये गुजारिश मतलब अत मतलब रेट मतलब गस रोजन बरकरार मतलब क्या मतलब मुश्किलात पेवान मतलब कश्मीर डून बूर पे पेवान मेहनत वारिया यह पे कुल पे वालन पे यह डून गोखरावन पे पे यह फुटरुन अत ज़्यादा लेबर खसान गई मतलब तकरीबन गोज किलो 1000 रुपये गसन 1000 नुक 800 रुपये गई मुकमल रेट अत मगर अत मतलब पे मतलब मार्केटस कुन वसान मतलब बाबर मार्केटस मज वाता पे मतलब गोज किलो ग 5 हथ पे पे पोस अगर मंडी आ मतलब सह गई ज़्यादा असल गई ज़्यादा असल मगर कर गवर्नमेंट इंतजाम मतलब गुजारिश करो मेहरबानी कर अत तो सो रेट मतलब यम सत मिले फायदे क्या सन बच्चे पकान ब्रो पको ब्रो। नाम है परवेज सुल्तान वानी, मैं तकरीबन 15 साल से ही काम कर रहा हूँ। आजकल मार्केट ठीक चल रहा है क्योंकि अगर बाहर की गिरी बंद हो जाएंगी तो तब हमारा मार्केट और बढ़ जाएगी। मैं रीज़न है बैरूनी मुल्क से यहाँ पे गिरी आती हैं, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम है पूरी कश्मीर में गिरियों की। अगर वो बंद हो जाएंगे तब हमारा गिरी तो, क्योंकि कुपवाड़ा में मंडी है कि अगर हंदवाड़ा में भी जिस तरह यहाँ पे फ्रूट मंडी अगर उसी साइड में हमें थोड़ा ज़मीन मिलेगा, हमारी भी शॉप्स वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक मंडी होगी स्टार्ट, तो हम गिरी को दिन ब दिन बाहर से भी व्यापारी आएंगे तो चलेंगी। अगर मंडी हो जाएंगे तो मार्केट में इजाफा ही मिल जाएंगे। बस हमें भी मंडी मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी हंदवाड़ा में गिरी की मंडी में मिलनी चाहिए। नाज़रीन ये कोशिश खबरनामा यतन सयान खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान।